फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का वेलकम है क्लास 11 में। दिस इज द फर्स्ट क्लास एंड आई होप you will enjoy the classes and you will study hard. Continuous study is required to get a grand success. Be concentrated, punctual, do your duties with responsibility. तो हम शुरू करेंगे। Our first chapter is the living world. Living world. Now the question arises, why we are going to study about the living? What the living beings are? How can you distinguish between living and non-living? If any entity is living, then whether it dies or not. So first of all, what the living beings are, what the life is. तो life क्या है? Life is a manifestation of, a result of different types of biochemical reactions. Life is the result of the manifestation of different types of reactions which are going in our cells, in our tissues, in our organs. Right? But we cannot look at, we cannot observe these reactions externally. Then how can we identify the living entities having metabolic reactions? How can we identify the given entity has life or not? इसका मतलब हुआ कि there are certain characteristics on the basis of which we can identify whether the given entity is living or not. Let us, this is a duster, ये duster है, तो हम इसको living कहेंगे कि नहीं? ये चौक है, हम living कहेंगे कि नहीं? क्यों कहेंगे नहीं? उसका तो कुछ रीजन होना चाहिए। यू ऑल आर लिविंग बीइंग्स, ठीक है? आप सभी अभी क्लास को अटेंड कर रहे हैं। यू ऑल आर लिविंग बीइंग्स, बट द गैजेट्स विच यू आर यूजिंग आर नॉट लिविंग। व्हाई? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई? सो देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स which are present in living beings, which are the defining features of living beings. However, there may be certain features which are present in living as well as non-living. तो हम living का कैरेक्टर्स देखते हैं कि
of a living being. So first of all, we are taking certain characteristics, then we have to explain one by one. That is cellular organization. Cellular organization. Metabolic reactions. Metabolism. Growth. Reproduction, movement, respiration, and consciousness. Together with reproduction. So on the basis of these parameters, we can distinguish living from non-living. अब देखो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, no entity can be living which is less than that of a cell. Cell is the basic unit of life. Cell is the structural unit of life. Cell is the functional unit of life. We have studied about unicellular and multicellular organisms. We have studied about prokaryotes and eukaryotes. We have also studied something about viruses. But हम लोग वायरस को लिविंग नहीं मानते हैं, वायरस को लिविंग नहीं मानते, बैक्टीरिया को लिविंग मानते हैं, एल्गी को लिविंग मानते हैं, बिकॉज लिविंग बीइंग्स जो है हैविंग कंप्लीट सेल. सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल का जो भी बॉडी बना रहेगा, that is the living, right? Now, whether cellular organization is defining or non-defining, so there is no exception in the world. कोई भी ऐसा एक्सेप्शन नहीं है कि लेस देन सेल कोई लिविंग बीइंग हो, यानी लिविंग जो भी होगा उसमें सेल जरूर होगा, चाहे एक सेल हो या मेनी सेल्स हो. सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज a defining character because this character is not present in non-living and is present universally in all living beings. तो कोई भी कैरेक्टर जो सभी लिविंग बीइंग्स में होगा और किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होगा, ऐसे कैरेक्टर को हम डिफाइनिंग कैरेक्टर कहेंगे. सेकेंड थिंग इज मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म इज द reactions which are going in our cells. Sum total of all biochemical reactions is called metabolism. मेटाबॉलिज्म जो है उसको हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं. एक में सिंपल सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनेगा, दूसरे में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस बनेगा. तो मेटाबॉलिज्म हो गया सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन आवर सेल्स, इन आवर बॉडी. और इसको दो ग्रुप में बांट सकते हैं. वन इज एनाबॉलिज्म
anabolism and other is catabolism. Anabolism and catabolism together is known as metabolism. ठीक है, इस दोनों को मिलाकर हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब देखिए, एनाबॉलिज्म में मैंने कहा सिंपल से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनता है। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में आपने क्या देखा कि CO2 and water combines together to form glucose. So formation of glucose in photosynthesis is an anabolic reaction. But respiration में हम क्या देखते हैं? रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। क्लास 10th में आपने पढ़ा है कि ग्लूकोज टूटता है, पायरुविक एसिड बनता है और फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, वाटर वेपर बनता है। सो रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ कैटाबोलिक रिएक्शन। सो बोथ एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म टुगेदर इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। Now, whether metabolism is defining or not, we can perform metabolic reactions in a test tube also. Outside the body, metabolic reactions can be performed, but it requires biocatalysts. Without biocatalysts, no metabolic reactions which are going on in our cells can be performed. समझ में आ रही ना? कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस सेल के बाहर हम बिना एंजाइम की मदद से नहीं करा सकते हैं। एंड एंजाइम्स आप जानते हैं, एंजाइम्स सेल में बनते हैं, राइट? तो सेलुलर रिएक्शंस जो टेस्ट ट्यूब में हम कराते हैं, रिएक्शंस तो लिविंग है, रिएक्शंस तो लिविंग है क्योंकि उसमें कैटालिस्ट इन्वॉल्व है। लेकिन देखिए, ये मेटाबॉलिज्म जो है, जो सेल के बाहर बिना एंजाइम का हो ही नहीं सकता, इसलिए ये डिफाइनिंग कैरेक्टर। सो मेटाबॉलिज्म इज आल्सो ए डिफाइनिंग कैरेक्टर बिकॉज metabolic reactions occur in our cells, in our body. No metabolic reactions are occurring outside the cell without the help of biocatalyst, right? So this is also a defining character. Now the third characteristic is growth. Growth is not a defining character. Growth is not a defining character because living beings grow, no doubt. Living beings grow करता है, no doubt. इसमें internal growth होते हैं, but non-living beings also grow. Also grow. कभी आप सुने होंगे कि माउंटेन का हाइट बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। ऑल्दो ये जो ग्रोथ नॉन लिविंग में होता है वह एक्सटर्नल है, लेकिन ग्रोथ लिविंग में भी हो सकता है, नॉन लिविंग में भी हो सकता है। सो ग्रोथ जो है, ग्रोथ का मतलब क्या? इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। So growth is a characteristic of living, no doubt, but it is not a defining character because it also occurs in non-living things. So it is not a defining character. Clear? Reproduction. Reproduction is the process to produce the progeny. अपने समान दूसरा पैदा करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। Reproduction is an important property of living being to
to maintain the continuity of a species. But it is not a defining character. ये डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है. क्यों? बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करता, तो क्या वह लिविंग नहीं है? आपने म्यूल का नाम सुना होगा, स्टेराइल होता है. हनी बी में देखे होंगे आप, वर्कर स्टेराइल होते हैं. ह्यूमन में कुछ कपल जो होते हैं वह स्टेराइल होते हैं. कुछ क्रोमोसोमल डिजीज वाले पर्सन होते हैं, सिंड्रोम्स होते हैं, वह स्टेराइल होते हैं. इसका मतलब वह लिविंग नहीं है, वह भी तो लिविंग है, राइट? दूसरी बात, नॉन लिविंग थिंग्स में भी आप देखिए. अब सैंड ड्यून्स का नाम पढ़े होंगे कि रेगिस्तान में क्या होता है, सैंड ड्यून्स बनता है. तो अभी एक सैंड ड्यून है और कुछ दिनों के बाद दूसरा सैंड ड्यून बन जाता है, तीसरा बन जाता है, तो उसकी संख्या तो बढ़ रही है. तो यदि संख्या बढ़ाना ही रिप्रोडक्शन है तो रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग कैरेक्टर, क्योंकि सभी जीव रिप्रोडक्शन नहीं करते. मैंने अभी आपको म्यूल का एग्जांपल दिया, हिन्नी का एग्जांपल दिया, स्टेराइल कपल का एग्जांपल दिया. इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो क्या वो लिविंग नहीं है? सो रिप्रोडक्शन इज एन इंपॉर्टेंट फीचर, नो डाउट, बट इट इज नॉट ए डिफाइनिंग कैरेक्टर. सो ये भी डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है. नाउ कम्स टू द मूवमेंट. लिविंग बीइंग्स, especially animals, move in search of food, in search of mate, in search of dwelling place. Living beings move. अब आप लोग बताओ, नॉन लिविंग मूव करता है कि नहीं करता है? नॉन लिविंग में मूवमेंट होती है कि नहीं होती है? बताइए कोई. हाँ, नॉन लिविंग में भी मूवमेंट होते हैं. अरे पृथ्वी चलती है, आपको पता है ना. स्टार्स में मूवमेंट होता है, पता है कि नहीं पता है? प्लैनेट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, पता है कि नहीं पता है? स्टार्स एक दूसरे से जुड़ जा रहे हैं, हम लोग पढ़े हैं. और आर्टिफिशियल मशीन तो हमारी मूव करती ही करती है. हम लोग सैटेलाइट छोड़ते हैं ना, मूवमेंट होती है ना. सो मूवमेंट जो है वो लिविंग का कैरेक्टर है. लिविंग बीइंग्स मूव, प्लांट्स मूव नहीं करता, ठीक है? उनके पार्ट्स में मूवमेंट्स होते हैं. तो लिविंग बीइंग मूव करता है, लेकिन ये भी डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है. मूवमेंट इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर. नाउ कम्स टू द रेस्पिरेशन. Living beings respire aerobically as well as anaerobically. Living beings respire aerobically as well as anaerobically and obtains energy. Obtains energy to drive the life. Non-living things में भी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है. नॉन लिविंग थिंग्स में भी कोई मशीन है, उसमें फ्यूल जो है उस जो बर्न करता है तो ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है. तो वहां भी कंबशन होता है, वहां भी बर्निंग होती है, वहां भी एनर्जी ऑब्टेन होता है. तो रेस्पिरेशन इज ए कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग्स बट नॉट ए डिफाइनिंग वन. ये समझ गए आप? रेस्पिरेशन इज ऑल्सो ए कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग but it is not a defining character because same phenomena occur in outside the living world. Means in non-living
bodies. Now comes to the consciousness. It is consciousness means response against any stimulus. Response for a stimulus is called consciousness. And ये consciousness जो है, that is the defining character. Because this character is not present in the non-living world. Consciousness is the technically most complicated term for the living ones. Because यदि कोई आदमी मान लो कोमा में चला गया, कॉन्शियस नहीं है, तो लिविंग है कि नहीं, ये एक क्वेश्चन आ जाता है। तो हम क्या कहेंगे उसको? हम कहेंगे हाँ, ए मैन who is not conscious, who is unconscious is living because other features are present in him. He is made up of cells. Metabolic reactions are going on. So metabolic reactions are defining characters. So he is living. Say unconscious person is a living one. However, his consciousness may be resumed or may not be resumed. If not resumed, then he may be declared as dead after ceasing the metabolic reactions. After ceasing the other features of life, an unconscious person may be declared as dead. Clear? So, consciousness is also a defining feature of living being. So, आपने देख लिया रिप्रोडक्शन यहाँ पर दो बार है। हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन जो है वह लिविंग में होता है। एक लिविंग अपने ही जैसा दूसरा जो है वह पैदा करता है स्पेसीज को मेंटेन करने के लिए, लेकिन रिप्रोडक्शन सभी में नहीं होता लिविंग बीइंग में, इसलिए रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज फीचर्स वी कैन फाइनलाइज that this one is non-living and I am living. You are living. Your family members are living. When someone dies, means these features are going to be ceased and he is declared as dead. ठीक है? चलिए